23 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की जानिब से मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ग्राउंड में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार में बहुत सारे रोज़ादारों ने भी शिरकत की। दावत इफ्तार में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के एक्स प्लेयर मोहम्मद फरीद सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन शान मोहम्मद अवार्डी खिताब से भी नवाजा गया। दावत इफ्तार में कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जनाब फिराद हकीम, एमपी अरूप विश्वास, एमपी माला रॉय, एमएलए बाबुल सुप्रियो, अमीरुद्दीन बॉबी, मोहम्मद अकरम, इश्तियाक अहमद राजू, दानिश इकबाल, मोहम्मद कमरुद्दीन, जुनैद खान और मोहम्मद बिलाल भी देखे गए। एचबी न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं आगे की पूरी खबर। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के शुभेच्छा जानाई। प्रेसिडेंट सेक्रेटारी এরা সবাই ইয়াং, অত্যন্ত আবেগ নিয়ে এবং সবটা নিয়ে নেমেছে মোহামেডানকে খেলার জগতে এবং অন্যান্য জগতে শ্রেষ্ঠ করার জন্য। আমরা আশা করছি যে কয়েক বছরের মধ্যেই মোহামেডান আবার যে শিরোনামে ছিল সেখানে যে পৌঁছবে। নিশ্চয়ই আসবে, একটু সময় লাগবে, আসবে, কারণ ওদের সাথে কথা হচ্ছে, স্পন্সরের সাথে হয়ে গেলেই হবে। সবুরে মেওয়া ফলে। ফুটবল তো সম্প্রীতির বার্তা এনে দেয়, তো আজকে দিন দাঁড়িয়ে সম্প্রীতি সবাই আমরা সম্প্রীতি, শুনুন, বাংলায় সম্প্রীতির বার্তা নতুন করে প্রমাণ করার কিছু নেই। বাংলায় আমরা যে মুহূর্তে বাংলায় জন্মেছি, বাংলায় থাকি, আমরা সম্প্রীতি নিয়ে থাকি, আমরা সহিষ্ণুতা নিয়ে থাকি, আমরা সবাই একসাথে থাকি। আর যদি স্টেজটায় দেখতেন যে সব ধর্মের মানুষ একত্রিত হয়ে আমাদের সাথে ইফতার করছে, এটাই বাংলার সম্প্রীতি। এটা 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 অরূপ বিশ্বাস বলে। সবসময় আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বাংলার যে কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্য, সেটাই হচ্ছে নিজের ধর্ম পালন করা, অন্যের ধর্মকে সম্মান জানানো। পবিত্র রমজান মাস চলছে, আমরা সব জায়গায় যাচ্ছি, একত্রিত হচ্ছি, ইফতার গ্রহণ করছি, এটাই তো সব থেকে বড় বিষয়। অবশ্যই মোহামেডানের তো সম্প্রতিকালে আই লিগে যা পারফরমেন্স, আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস এবার মোহামেডান চ্যাম্পিয়ন হবে। অবশ্যই একটার করে একটা, স্টেপ বাই স্টেপ। আগে আমরা আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হই, তারপর নিশ্চয়ই আইএসএল খেলব। এই বছর কি করে হবে, এখনো তো আই লিগ শেষ হয়নি। প্লেয়ারদের জন্য বলবো যে 100% মাঠে দিতে হবে। আমরা যেটা মনে করি যে প্লেয়াররা, মোহামেডান ক্লাবে যারা কর্মকর্তা, তারা এত কষ্ট করে টিম তৈরি করছেন, এত পরিশ্রম করছেন, এত খাটছেন, সাধ্যের বাইরে গিয়ে তাদের জন্য করছেন। আমার তাদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন মাঠে গিয়ে 100% দেয়, তাহলেই মোহামেডান চ্যাম্পিয়ন হবে। आजकल तो आगे के ज़माने में, हमारे ज़माने में मेरे वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर्स फ्रॉम इंडिया के जितने खिलाड़ी थे, दे वर नॉट इम्पोर्टेड इन द वर्ल्ड दोज डेज। आजकल भी है, मगर प्रॉब्लम ये हो रहा है, वी आर गेटिंग सो मनी इम्पोर्टेंस फ्रॉम फॉरेन, you know, we respect foreign coaches, players, but why not? अल्लाह बोले आगे निजे चले ना, निजे घर साफ करो, बाद में मस्जिद, आगे निजे ছেলেদের খাওয়াতে হবে, নিজেদের প্রডিউস করতে হবে, নিজের ছেলেকে ভালো স্কুলে পাঠাতে হবে, ভালো কাজে দিতে হবে, ভালো ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার বানাতে হবে। কিছু তাদের কী হবে, তো আমার বলার ইয়ে আছে, আমার প্লেয়ার আর নট ইনফেরিয়ার, আর কোচ আর নট ইনফেরিয়ার, but ওই জন্য otherwise they can also produce, they can also show that they are not inferior and bring so many trophies to the great club of Calcutta, of India. আমরা একটু খেলেছি, we played with all great clubs, for great clubs and great players with। सर बहुत सारे लोग जो है वो, आपने भी जैसे कहा कि मम्मा एक वक्त था कि बुरे हालत में भी फिर भी मम्मा मेरे सपोर्ट किए, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे जो ज़मीनी सतह से उठ कर आ रहे हैं, गरीबी से उठ कर आ रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं? इस तरीके से आज आप लोगों को जो मिला उसी का अल्लाह का शुक्र होगा कि आगे बढ़ना है। क्या होगा नहीं होगा, मेरे को आगे जाना है। मेरे को खाना मिलो मत, पानी मिलो मत, हम लोग नहीं खा के पी के चले जाते थे टेनिस बॉल लेके मैदान में। नहीं तो घर में छोटा घर अल्लाह का बस घर था, उसी में टेनिस बॉल करके घर के खिड़कियाँ फोड़ देते थे। मगर हम खेल नहीं छोड़ते, हमको खेल नहीं छोड़ना है, किसी से तकलीफ दुख है बयान नहीं करना, वही दुख को लेके आगे बढ़ना है। स्पोर्ट्स के सादाइयों को क्या मैसेज देंगे? जी, स्पोर्ट्स के सादाइयों को, जो स्पोर्ट्स लवर है, उन्हें क्या मैसेज देंगे? वही मैसेज ये है कि तुम लोग किसी से कमतर नहीं है, किसी की ये मत करो, इमदाद की फिक्र मत करो, मगर हमारी ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि ऑल
जो जिनके पास जो भी है पैसा वैसा उनको टैलेंट देकर उनको ग्रूम करना चाहिए, ग्रूम करके दिखाना चाहिए कि इंडियन प्लेयर्स कैन बी ग्रूम टू वर्ल्ड क्लास। दे आर नॉट इनफेरियर, दे आर नॉट इनफेरियर, दे आर नॉट इनफेरियर। আমার রেজাল্ট আছে, আমার রেজাল্ট আছে 5 4 ফিট 5 ফিট। अमित दास मेहता बोले बेच ये तक की खेलबे हाइट ही नहीं, और वो खेले इंडिया की ट्रॉफी दी। हाँ हाँ मेहता आपके बोले वो तो 4 फीट 5 फीट वो की करे इंडियाते खेले। अमित दास 4 फीट 5 फीट की करे खेले, ওরা খেলে ইন্ডিয়াকে ট্রফি দিয়েছে। আমার বলা আছে আমার প্লেয়ার, আমার সব প্লেয়ার্স আর নট ইনফেরিয়ার, নট আমাদের প্লেয়ারদের ভালো ট্রেনিং করে দিতে হবে, আগে ভালো খাওয়া দাওয়া, ভালো পানি দিয়ে ভালো ট্রেনিং দিতে হবে। ওদের বলতে হবে তোমার মাঠে যাওয়ার টাইম আছে, ফেরার টাইম নেই। আনলেস প্র্যাকটিস, আনলেস ইউ আর হ্যাপি। আর আমরা বলি আমরা কোথায় ফলো করি, কিল দ্য পেন বাই টেকিং মোর পেন। যখন পেন তখনই आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ और मैं एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑफिशियल्स कि मेरे को लोग इतने बड़े अवार्ड से अवार्ड दिए मेरे को। काफ़ी वक्त लगा। हाँ जब देर दुरुस्त हो मिल तो गया। सबर का फल मीठा। जी भाई सबर का फल मीठा है, समझिए तो मिल गया। बहुत खुशी की बात है, मेरे बहुत खुशी हो रही है। और हैदराबाद में लोग बहुत खुश हैं इस वक्त। सब लोग मेरे को वहाँ से मुबारकबाद के लेटर फ़ोन से आ रहे हैं, वहाँ से कॉल से आ रहे हैं कि आपको अवार्ड मिल गया फरीद आखिरकार। किसी ज़माने में आप टीम के अहम हिस्सा थे और आप टीम की जीत में अहम रोल अदा करते थे। आज फंक्शन में अहम रोल अदा कर रहे हैं, आज मेहमान खसूसी है, तो कैसे क्या अब बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। बहुत ही आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ और बहुत खुशी हो रही है मेरे को। इतनी खुशी है कि मैं अपने अल्फाज बयान नहीं कर सकता। आप हमेशा कोलकाता से एक अच्छी खबर लेकर जाते थे हैदराबाद, इस पर क्या? अब यही खबर है कि भाई आपको अवार्ड मिला, ये मेरे अवार्ड है, बहुत बड़ा मेरे लिए एहसास है ये। इस अवार्ड को हासिल करने के लिए कितनी जिद्दोजहद का सामना करना? बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये अवार्ड मिलता है, क्योंकि इतना आसानी से नहीं मिलता ये अवार्ड। और ये अवार्ड जो है बहुत कम प्लेयरों को मिला है, जो अच्छा आउटस्टैंडिंग गेम खेलने वाले को मिलता है। मैं बहुत खुशी है मेरे को कि मैं भी एक कल के मोहम्मडन स्पोर्टिंग में और आज के मोहम्मडन स्पोर्टिंग में कितना फ़र्क पड़ गया? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। जो अभी ऑफिस ये लोग बिलाल वगैरह ये लोग बहुत ही अच्छे हैं और ये लोग हमेशा प्लेयर लोग का भला ही सोचते हैं, चाहे वो प्लेयर एक्स प्लेयर हो या फिर आपका करंट प्लेयर हो, सबके साथ बहुत अच्छा शुरू करते हैं लोग, बहुत अच्छे हैं लोग। सर करंट आई लीग में मोहम्मडन स्पोर्टिंग इस वक्त सेकंड पोजीशन पर है, क्या लगता है कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग पहली मरतबा आई लीग चैंपियन बन सकती है? बराबर इंशाल्लाह बनने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि मोहन बहुत अच्छा खेल रही है स्टार्टिंग से। और जो स्टार्ट जो अच्छा होता है तो आखिर भी इसकी अच्छी होती है। इंशाल्लाह हम दुआ कर रहे हैं कि मोहन चैंपियन हो जाए और इसके लिए फिर उसका ISL भी खेलना है उसको। पहले मैं तमाम मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के ऑफिशियल के जानिब से मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ तमाम मेहमान और जो लोग हमारे बीच आज इफ्तार में शामिल हुए। मैं तमाम लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच मौजूद थी लोकसभा MP श्रीमती माला राय, हमारे मेयर जनाब फिराद हाकिम साहब, जनाब नदीमुल हक साहब, जनाब अरूप विश्वास साहब, जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब। थोड़ा लेट हो गए हमारे बाबुल सुप्रियो MLA साहब, लेकिन ये इनका मोहब्बत था कि लेट होने के बाद भी मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के इफ्तार में ये आए। ये इस बात का साबित किए हैं कि ये मोहन बागान के सपोर्टर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन मोहम्मडन से भी मोहब्बत करते हैं। शान मोहम्मडन अवार्ड जो है हमारे बुज़ुर्ग जब क्लब में थे मरूम सुल्तान अहमद, जनाब हाजी कमरुद्दीन साहब और हमारे मंजर इकबाल साहब, अमीरुद्दीन बॉबी साहब, उस वक्त से ये शान मोहम्मडन हम लोग वो प्लेयर को देते थे जो हमारे क्लब का जर्सी पहन के क्लब में खेले। और आज के दौर में हिंदुस्तान के साबिक कप्तान और बहुत नामी फुटबॉलर जनाब सैयद नईमुद्दीन और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में खेले जनाब मोहम्मद फरीद साहब, इन लोगों को हम लोगों ने शान मोहम्मडन दिया है, क्योंकि एक प्लेयर का रिटायरमेंट के बाद उनको रोज़मर्रा के लिए बहुत दिक्कत आता है। हम लोगों ने ये कोशिश किया, हमारे तमाम मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के ऑफिशियल ने ये कोशिश किया है कि हम लोग कुछ ऐसा कर सके जो उनका सारा बोझ तो नहीं, कुछ उनका बोझ हम लोग हल्का कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि एक शान मोहम्मडन स्पोर्टिंग जो दिया गया नईमुद्दीन साहब को, मैं इसे एक बहुत ही मोहम्मद फरीद भाई को जो दिया गया है, इसे मैं बहुत नेक सोच समझता हूँ, क्योंकि नईम साहब एक ऐसे कोच थे हमारे बंगाल के मैदान में। PK बैनर्जी, अमल दत्ता नाम लिए जाते हैं, जो कई बार हमारे कलकत्ता लीग जो है वही एक ISL से भी बेहतर किसी टाइम पे हुआ करता था। ऐसे टीम होते थे, रेलवे FC को हराना मुश्किल पड़ता था, बड़े बड़े क्लब्स को, खिदिरपुर को हराना मुश्किल पड़ता था। उनके स्टॉपर में खेलते थे दो भाई,
एक अपना अमित भद्रा और सुमित भद्रा, तो हमें सब कुछ उस वक्त से हम मैदान में आते हैं। तो ये नईमुद्दीन साहब ने ना ही सिर्फ बहुत ट्रॉफीज़ जीते हैं, सिर्फ मोहम्मडन स्पोर्टिंग में नहीं, वो फुटबॉल के प्रति ईमानदार रहे हैं। और मोहम्मडन स्पोर्टिंग नहीं, ईस्ट बंगाल का भी बहुत सालों तक कोच रहे, मोहन बागान के भी कोच रहे हैं, तो फुटबॉल का सेवा किया है उन्होंने। ईस्ट बंगाल क्लब की तरफ से जो उनको सम्मान दिया गया है, मैं उसका बहुत कदर करता हूँ। और नईम साहब को हमेशा बहुत क्लब अगर 2 गोल से जीते, 3 गोल से जीते, तो भी बड़ा काम रहते थे। उनका कोई ये नहीं होता था, ज़्यादा कुछ एक्सप्रेशन नहीं होता था, रिएक्शन निर्लिप्त तो बाकी बोले बांग्ला। तो बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कितना सुंदर क्लब हाउस बनाया है। एक मोहन बगानी बोल के जाता है कि हम भी चाहेंगे कि आई लीग में जो है कलकत्ता ही का ही क्लब जीते और गोकुलम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ तो गोकुलम का मैच हो गया ना? हाँ, तो ठीक है ना, वो गोकुलम के साथ मैच होगा, उसमें मोहम्मडन 2-1 से जीतेगा, आप मिला लीजिएगा। और उसमें 3 पॉइंट का जो गैप है वो इक्वल हो जाएगा। फिर देखेंगे चैंपियंस का मैच का क्या होता है। हर साल हम लोग अफ्तार पार्टी करते हैं, लेकिन लास्ट 3 साल से कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, तो इस बार दोबारा किए हम लोग। और शान मोहम्मडन एक रिवायत है जो 1990 से शुरू हुआ था, तो वो इसी को कंटिन्यू किए हम लोग, लेकिन हमेशा एक बंदे को दिया जाता था। इस बार हम लोगों ने 2 बंदे को दिया। ये शान मोहम्मडन क्या हमेशा इसी तरीके से शान बरकरार रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल रहेगा। ये इनिशिएटिव देखिए हम लोग के बुजुर्गों ने लिया था, उसको हम लोग यंग जनरेशन ने कैरी फॉरवर्ड करे। हमारे बाद भी जो लोग आएंगे वो इसी तरीके से शान मोहम्मडन निभाते रहेंगे। एक बार अभी जितना हम लोग कमेटी में हैं, हम लोग एक मिक्स जनरेशन चला रहे हैं, एक यूथ भी है हमारे साथ, एक्सपीरियंस भी है, तो यूथ और एक्सपीरियंस दोनों मिला के हम लोग चल रहे हैं। आने वाले जनरेशन को यही बोलेंगे कि जितने भी इदारे हैं जो आपके लिए महदूद है, आप उसमें जाइए, आप खिदमत खल्क के लिए जाइए। आपका काम आपका क्लब को देना है, क्लब से कुछ लेने का चक्कर में मत आइए, क्लब को देने का, इदारा को देने के लिए आइए, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी आपको। इफ्तार पार्टी के साथ ही साथ क्या मैसेज है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने दिया? देखिए, ये मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का परंपरा है। जब से ये हम लोगों का इफ्तार पार्टी होता है तो हम लोग एक शान मोहम्मडन के नाम से नवाजा जाता है, जो हमारे एक्स प्लेयर होते हैं। जैसा इस बार हम लोगों ने नईम साहब और हमारे वो फरीद साहब को हम लोगों ने ये किए हैं, शान मोहम्मडन का तोहफ़ा दिया गया है। तो इसी तरह हमेशा से हर साल रमज़ान के महीने पे जिस दिन हम लोग इफ्तार पार्टी होता है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब का, उस दिन हम लोग शान मोहम्मडन के नाम से एक ट्रॉफ़ी हम लोग देते हैं। ये तो करीब 20 साल से हम लोग देते आ रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से ये चलते आ रहा है। जब से हम लोग ये कमेटी आई है, जब से सुल्तान भाई के नेतृत्व में, जब से सुल्तान भाई हम लोग आए थे, उस ज़माने से अब तक हम लोग ये जो ट्रेडिशन है ये हम लोग चलाए रख रहे हैं। शान मोहम्मडन के नाम से क्यों किया इस तरह का नाम? शान मोहम्मडन एक मोहम्मडन के इन लोग शान हैं, फुटबॉल के एक शान है, बंगाल के एक शान है इन लोग, इसलिए ये शान जो है ये मोहम्मडन के साथ में जोड़ा गया। तो अगर ये है जैसा नईम साहब सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान की ये शान है। तो इसलिए ये जो है मोहम्मडन स्पोर्टिंग शान मोहम्मडन के नाम से ये ट्रॉफ़ी दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है ये कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग के नाम से उन्हें पहचाना जा रहा है। ये एक हिंदुस्तान के आइकॉन है, एक मोहम्मडन के हिंदुस्तान के एक शान है नईम भाई। पिछले 2 वर्ष कोरोना की वजह से क्या आप लोगों का ये शान मोहम्मडन जारी रहा? हाँ, ये तो हम लोगों ने लास्ट 2019 के बाद से 20 और 21 जो है अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था और हम लोग इफ्तार पार्टी नहीं कर पा रहे थे। खेल भी बंद था, साथ साथ ग्राउंड वगैरह सब बंद था। अब अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इस साल हम लोगों को मौका मिला है और सब मिलकर हम लोगों ने सब जाति, सब धर्म, सब भाषा बोलने वाले सर क्लब के ईस्ट बंगाल, मोहन बगान और जितने भी क्लब के ऑफिशियल्स जो हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सबको लेकर क्लब के जितने भी अहदेदार हैं सबको हम लोग एक साथ मिलकर ये इफ्तार का एहतमाम मोहम्मडन स्पोर्टिंग की जानिब से होता है और हम लोग ये इफ्तार को मनाते हैं। नहीं, ब्रांड एम्बेसडर होने का माने यही होता है कि भाई आप क्यों पैसा उसको देके बनाएंगे, तो इसलिए बनाया जाता है कि उससे हम लोगों का जो प्रोडक्ट बेच पाएँ। तो इस तरह से स्पॉन्सर बहुत सारे जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, लोग आ रहे हैं, बातचीत हो रही है। चल रहा है कि अभी जो नई टीम तश्कील हुई है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, वो सही है, सही तरह से काम कर पाएंगे? तो आपको देखिएगा रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा सही है या नहीं है। जब से नई टीम बनी है तब से देखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई। एक्चुअल देखिए, एक्टिव शुरू से ही हम लोग थे, लेकिन हम लोगों पर डबल बोझ था, एक तो टीम चलाना, दूसरा डेवलपमेंट करना। अब टीम के लिए हमको स्पॉन्सर मिल गया तो डेवलपमेंट आपरूपी हो जाएगा। तो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन, हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सारा काम में आ जाएगा।
में है। आई लीग में अभी सेकंड है, 6 मैच बाकी है, मुकाबला चल रहा है, ज़ोरदार मुकाबला है। इंशाअल्लाह रमज़ान के बरकत से और तमाम सदाइयों के दुआ से हम लोग लीग चैम्पियन होंगे इंशाअल्लाह। ये कोशिश जारी है और हमारा क्लब का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आप लोग देख रहे हैं पहले कैसा था, इससे पहले भी आप लोग ग्राउंड में आए, आप लोगों ने यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग रूम बन रहा है, हमारा टनल जो है आप लोगों ने देखा है, जो टनल से सब है, तो इसीलिए हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है। ये दिन हम तो 20 सालों से क्लब में हैं, ये एक अलग माहौल, एक अलग काम का तरीकाकार काम हो रहा है क्लब में, जो इससे पहले क्या उससे फायदा पहुंचेगा ये बताओ। देखिए इससे फ़ायदा क्या पहुंचेगा, एक नामी ग्रामी प्लेयर है, पूरी दुनिया पहचानती है उनको, और वो क्लब के साथ अगर जुड़ गए मोहम्मडन तो ऐसे 130 साल क्लब है, उनका भी ब्रांड बढ़ गया, साथ साथ मोहम्मडन का भी ब्रांड। लोग कह रहे हैं कि फुटबॉल की दुनिया से क्यों नहीं ब्रांड नहीं, देखिए इरफान पठान का सबसे बड़ा एक चीज़ है, उन्होंने कहा है कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग का 2 जर्सी हमको चाहिए, जो जर्सी पहनकर हम रेगुलर 2 भाई प्रैक्टिस करेंगे और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को प्रमोट करेंगे। क्योंकि अभी जो 25-20 साल का जो नौजवान है जो मोहम्मडन को पूरी हिंदुस्तान में भूल चुका है, अगर इरफान पठान मोहम्मडन का जर्सी पहन के क्रिकेट प्रैक्टिस करता है, जो क्रिकेट देखते हैं मैं इरफान पठान के सदाई फ़ैन और मोहम्मडन के फ़ैन, तो एक अच्छा माइलेज मिलेगा क्लब को भी, और हमारा ये हम अच्छी तरह मतलब ये हमको उम्मीद है ये अच्छी तरह अच्छा मिलेगा पूरे हिंदुस्तान का। क्योंकि इस 25 सालों में लोग मोहम्मडन को आहिस्ता आहिस्ता भूल रहे थे, लेकिन अब वो दिन आ रहा है, वो पुराना दिन जो अपना मैदान में मैच होगा और 15-16 हज़ार सदाई मैदान में मौजूद रहेंगे, वही घोड़सवार का दौड़ और वही पुलिस का दौड़ और वही कीचड़ से लिपते हुए नौजवान घर को लौटेंगे, जो जिस तरह हम लोग बचपन में करते थे। तो ये बड़ी खुशी की बात है। आइंदा आने वाले कल में मोहम्मडन को किस मुकाम पे पहुंचाएंगे? हम लोग तो कलकत्ता लीग चैंपियन, इंशाल्लाह आई लीग चैंपियन है। अभी हमने आपको बोला डूरेंट में अच्छा रिजल्ट किए हैं, फुटसल में रिजल्ट किया, आइंदा साल हम लोग डूरेंट में फिर इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट करेंगे। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब कितने पायदार पे है सर? अभी सेकंड में है, 6 मैच सबका बाकी, हम सेकंड में भी है कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब अपने प्लेयरों को वो दे रही है जो प्लेयरों ने अपने दौर में दिया है, और नईम साहब और फरीद साहब किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी नाम के ताल्लुक नहीं है। हिंदुस्तान में इनसे बड़ा ना कोच, इनसे बड़ा प्लेयर पैदा हुआ है, और मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने उनको याद किया है और उन्हें उस फेलिसिटेशन किया है, तो बहुत खुशी की बात है। इसके साथ देखा जा रहा है कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग का ऑफिशियल सेक्रेटरी दानिश भाई और कमर साहब, बिलाल भाई, बहुत सारे जो प्लेयर है, जब से बंकर हिल इस क्लब को जुड़ी है, टीम इंशाल्लाह अच्छी करती जा रही है, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला दिन में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब आई लीग खेले और ईस्ट बंगाल मोहम्मडन के भी कॉम्पिटिशन में आए। इसमें मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को कुछ अलग अंदाज में देखा जाए। मैंने कहा ना बेशक कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब जो अपनी जो चार्म थी, जो उसकी पॉपुलैरिटी थी, वो 4-5 साल से एकदम ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये बंकर हिल और ये दानिश और बिलाल भाई, कमर भाई और हमारे अमरुद्दीन बॉबी जब से आए हैं, उन्होंने टीम कोशिश की कि टीम अच्छा बनाए, प्लेयर को सही वक्त पे पैसा मिले, प्लेयरों को हर चीज़ की फैसिलिटी दी जाए, तो प्लेयर परफॉर्म्स करे। तो प्लेयर को क्या चाहिए, प्लेयर जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग मोहम्मडन जहाँ भी खेलती है वो उसका वो इनकम होता है, तो वो खेलेगी, मेहनत से खेलेगी, ईमानदारी से खेलेगी, उसे उसका मेहनताना मिलेगा तो अंजाम भी देगी। तो अल्लाह करम से वैसे ही हो रहा है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब आने वाले दिन में और फिलहाल बहुत अच्छी कर रही है और आने वाले दिन में और अच्छा करती रहेगी। क्या लग रहा है कि और क्या चीज़ की कमी है जिसको बताने पर इंतजामिया और भी बेहतर कर? देखिए दुनिया में, घर में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी होती है, कमी पूरी नहीं होती है, कोशिश करना रहता है, इंसान का काम है, कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह जितनी भी गैपें हैं ठीक होती रहेगी। सिर्फ एक काम ये रहे कि ऑफिशियल और प्लेयर एकजुट मिल के रहें और आपस में कहीं भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करें और सिर्फ मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के बारे में खोले, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के मुस्तकबिल के बारे में सोचे, तो इंशाल्लाह आने वाले दिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब और ऊपर और आगे जाएगी। और आप लोग जानते हैं कि 40 साल के बाद मोहम्मडन में आपका कप आया था, तो हम लोग चाहेंगे कि बाद में जाके फिर ISL खेले और ISL का विनर बने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। आपने बहुत सारे मौजूद पे गाना लिखा और आपने गाया, तो क्या मोहम्मडन पर भी आपको कोई सीलिंग आई है? और देखते हैं आने वाले कल में ये देखते हैं, अगर मौका मिलेगा मुझे और तकदीर में लिखी रहेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर मोहम्मडन को लेके भी मैं गाना बनाऊंगा। लोग जो है पहले देखा गया, पिछले दिनों देखा गया था कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को कहीं ना कहीं से मुसलमानों से इस तरह का एक रूमर था। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, आपका ये माइनॉरिटी बोल करके पूरा भारत में देखिएगा एक क्वेश्चन मार्क आता है, तो माइनॉरिटी एक्चुअली अगर सही से आप लोग देखोगे क्या मुसलमानी माइनॉरिटी है, तो मेरे नज़र से नहीं है, क्योंकि मुसलमान हो रहा है हम लोग का हिंदुस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो हम लोग माइनॉरिटी नहीं है, हम लोग कोई ना कोई तरह से जो माइनॉरिटी है उसको सपोर्ट करने के लिए बने हुए। तो देखिए ये एक क्लब है, यहाँ पे हर धर्म का इंसान है और ये नेशनल लेवल में नहीं इंटरनेशनल लेवल में भी खेलते हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आगे के दिन ये क्लब और भी तरक्की करे और इंसान के इस दिमाग से ये बात निकल जाए कि भाई ये मोहम्मडन का ही क्लब है।
इस इफ्तार पार्टी में और शान मोहम्मदन की तकरीब में आपका कैसा फील? बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई बोलता है कि ये मोहम्मदन का क्लब है, मुस्लिम का क्लब है, तो ये आपके सामने हाजिर था कि स्टेज में आपका यहाँ पे अरूप विश्वास उपस्थित थे, माला राय MP, कार्तिक बनर्जी, बाबन बनर्जी से लिख के बबीदा, सब लोग प्रेजेंट थे। तो ये ऑलरेडी प्रूफ कर दे रहा है कि मोहम्मदन सिर्फ मुसलमानों की क्लब नहीं है, ये पूरा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके क्लब है ये हिंदुस्तान। मोहम्मदन एक ऐतिहासिक क्लब है पूरे हिंदुस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो टीम है बहुत दूर तक इसको लेके आई है। तो आज इसका दावत इफ्तार हुआ, यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई और सबसे खुशी की बात यह है कि एक क्लब के जो पुराने अहदेदार थे जिन्होंने क्लब में अपना डेडिकेशन दिया है, ऐसे लोगों को याद किया गया, उनको सम्मानित किया गया, उन्हें इज़्ज़त दी गई। यही हमारा दीन भी कहता है, यही हमारा इस्लाम भी कहता है कि हम अपने पुरखों को नहीं भूलें, अपने इतिहास को नहीं भूलें, अपने वक़ार को नहीं भूलें। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और इसमें लोगों को बुलाकर जिस तरह से इज़्ज़त दी गई, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार है पूरे मोहम्मदन टीम का। पिछले दिनों देखा गया कि मोहम्मदन को मुसलमानों से मोहम्मदन एक क्लब है और क्लब में देखिए आप हर तरह से 11 प्लेयर ही क्यों गेम जिताता है और 11 प्लेयर कोई चुनिंदा कम्युनिटी से नहीं होते हैं। मोहम्मदन में भी हिंदू खेल रहे हैं, मोहन बागान में भी मुसलमान खेल रहे हैं। ये इस तरीक़े से हम लोग खेल को किसी मज़हब के साथ ना जोड़ें, इसमें हम लोग सब जुड़े, इसमें हमारा रूह जुड़ा होता है। जब हिंदुस्तान जब खेलती है पूरी दुनिया में तो हम हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भारतीय नागरिक का दिल धड़कता रहता है। उसी तरीक़े से हम लोग कलकत्ता नाइट राइडर को फिर हम लोग सपोर्ट करते हैं। ये और बात है कि हमारा है, लेकिन हर टीम में हमारी प्लेयर खेल रहे हैं, जीत भी हमारी है, हार भी हमारी है और सबको हम प्यार से गले लगाते हैं। तो उसी तरीके से मोहम्मदन भी किसी पर्टिकुलर जात या किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ा जाए। ये खेल है और खेल को हम लोग उसी तरह स्पोर्ट स्पिरिट से लेंगे।